Ecclesiastes 9 chapter, 10 chapter, 11 chapter, 12 chapter पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से. Like chapter 9 introduction, like things happen to good and bad. How to enjoy the good of this life? Wisdom is better than strength. First verse से पढ़ेंगे. For all this I considered in my heart, even to declare all this, that the righteous and the wise and their works are in the hand of God. No man knoweth either love or hatred by all that is before them. All things come alike to all. There is one event to the righteous and to the wicked, to the good and to the clean, and to the unclean, to him that sacrificeth and to him that sacrificeth not. As is the good, so is the sinner, and he that sweareth, as he that feareth an oath. This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all. Yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead. For to him that is joined to all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Also their love and their hatred and their envy is now perished, neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart. For God now accepteth thy works. Let thy garments be always white, and let thy head lack no ointment. Live joyfully with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity. For that is thy portion in this life, and in thy labor which thou takest under the sun. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. For man also knoweth not his time, as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare. So are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. This wisdom have I seen also under the sun, and it seemed great unto me. There was a little city and few men within it, and there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it. Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city, yet no man remembered that same poor man.
Then said I, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruleth among fools. Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroyeth much good. Chapter 10 of wisdom and folly, of riot, slothfulness and money. First verse से पढ़ेंगे. Dead flies cast the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour. So doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour. A wise man's heart is at his right hand, but a fool's heart at his left. Yea, also when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool. If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place, for yielding pacifieth great offences. There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler. Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place. I have seen servants upon horses and princes walking as servants upon the earth. He that diggeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. Whoso removeth stones shall be hurt therewith, and he that cleaveth wood shall be endangered thereby. If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength. But wisdom is profitable to direct. Surely the serpent will bite without enchantment, and a babbler is no better. The words of a wise man's mouth are gracious, but the lips of a fool will swallow up himself. The beginning of the words of his mouth is foolishness, and the end of his talk is mischievous madness. A fool also is full of words. A man cannot tell what shall be, and what shall be after him. Who can tell him? The labor of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city. Woe to thee, O Lord! Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning. Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength and not for drunkenness. By much slothfulness the building decayeth, and through idleness of the hands the house droppeth through. A feast is made for laughter, and wine maketh merry, but money answereth all things. Curse not the king, no, not in thy thought, and curse not the rich in thy bedchamber, for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter. Chapter 11. Directions for charity, death out to be remembered in life. First verse से पढ़ेंगे. Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Give a portion to 7 and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. If the clouds be full of rain,
They empty themselves upon the earth, and if the tree fall toward the south or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be. 4 वर्स से आगे पढ़ेंगे. He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. Okay, 5th verse. As thou knowest not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child, even so thou knowest not the works of God who maketh all. 6th verse से आगे पढ़ते जाएंगे. In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand. For thou knowest not whether shall prosper either this or that, or whether they both shall be alike good. Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun. But if a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness, for they shall be many. All that cometh is vanity. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Chapter 12. Introduction. The Creator to be remembered in the days of youth, and must not be deferred. The fear of God, the chief concern of man. First verse से पढ़ेंगे. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain, in the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease, because they are few, and those that look out of the windows be darkened, and the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Also, when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail, because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Or ever the silver card be loosed, or the golden bowl be broken, or the preacher or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Okay, 8 verse से आगे. Vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge, yea, he gave good heed, and sought out and set in order many proverbs. The preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies,
which are given from one shepherd. And further, by this, my son, be admonished of making many books. There is no end, and much study is a weariness of the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. सबोपदेशक 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय, 12 अध्याय पढ़ेंगे। हम BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं 9 अध्याय का पहले वचन से। यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और न करने वाले, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा, जैसी शपथ खाने वाले की दशा वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों को एक सी दशा होती है, और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। हालेलुया। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, और मन में सुख मान कर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। बुद्धिमानी और मूर्खता से संबंधित विचार। 13 वचन से आगे, मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया,
और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए ये वचन। देखिए क्या लिखा है। यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। आमीन। अब बुद्धि को वैल्यू कितना दिया है देखिए, है ना। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। जबरदस्त है। मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से। जल्दी मानते नहीं है मूर्ख, बहुत जल्दी सुनते नहीं है, बहुत जल्दी मानते नहीं है। उनको चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है। लेकिन बुद्धिमान के सामने धीरे से भी बोलिए, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। 18 वचन आगे, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये सारी चीज़ें हमारे आज के समय, आज हम जो जीवन जी रहे, जिस दौर से हम जा रहे, उसमें ये वचनों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत ज़्यादा मायने में ये वचन लाभदायी है हमारे लिए। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। 10 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। थोड़ी चाहिए मूर्खता, बस सब पानी फेर देता है। 2 वचन से आगे, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसकी समझ काम नहीं देती, और वह सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूँ। यदि हकीम का क्रोध तुझ पर भड़के, तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हकीम की भूल से होती है। अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं, और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर पर डसेगा। जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का, और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश, तुझ पर हाय, जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हकीम प्रातःकाल भोज करते हैं। हे देश, तू धन्य है, जब तेरा राजा कुलीन है
और तेरे हकीम समय पर भोज करते हैं, और यह भी मत वाले होने को नहीं, वरन बल बढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़ियाँ दब जाती है, और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है, और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है, और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा, और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। बुद्धिमान का आचरण। 11 अध्याय पहले वचन से। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तो उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं, तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, जो सब कुछ करता है। हालेलुया। भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन फल सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यह सच बात है। मुझे धूप को देखने से बहुत सुख मिलता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमेशा उजियाला मन भावन लगता है मुझे, और धूप को देखना मुझे पसंद आता है। बहुत ज़्यादा मुझे आनंद मिलता है धूप को देखना, पता नहीं मुझे क्यों, वो एक अलग लगता है मुझे। धूप देखने से ऐसे लगता है जल्दी से मैं उसको सब फैलने दूँ सब जगह, मुझे बहुत पसंद है वो। ये सच बात है, ये सच है। 7 वचन प्रैक्टिकली सच है ये। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। जवानों को सलाह। 9 वचन से आगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हालेलुया। ओके, 12 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारांकन अंधेरे हो जाए, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और राग गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा।
और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। 5 वचन से आगे, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। 9 वचन से आगे, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा का ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख कर के बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 22 चैप्टर 63 वर्स से 71 वर्स। 2 सैमुअल 3 चैप्टर 4 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 63 वचन से 71 वचन तक। 2 शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय 4 अध्याय। जब हम पढ़ेंगे ये अकेले में बैठकर, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में ये वचनों को पढ़ेंगे और एक विशेष प्रकार का परमेश्वर हमारे अंदर भेद को खोलेगा, निश्चित खोलेगा, और उस भेद ही का वह कारण बन जाएगा कि आप उस दिशा को पकड़ लेंगे, उस डायरेक्शंस को पकड़ लेंगे जिस डायरेक्शंस में परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है। आमीन। ये निश्चित बात होने जा रही है। आमीन। हमने इसके विषय में समझना है। बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर हमको चला रहा है, वचन सिखा रहा है। हमने उसको अपने अंदर समेट लेना है, पकड़ लेना है, मजबूत करना है, अपने अंदर उसका विश्वास बढ़ाना है। और हम ये वचनों को अपने अंदर लेने का रास्ता परमेश्वर ने इसीलिए दिया है क्योंकि हमको वो एक मंजिल देना चाहता है, एक मकसद में हमको पहुंचाना चाहता है। व्यर्थ में वो हमको ये ऐसे प्रकार के रास्ते नहीं चलाता है और वो हमें ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करता है। हमको वो जानता है हम नहीं पढ़ सकते हैं वचनों को, वो जानता है हम परमेश्वर के साथ ये समय नहीं दे पाते हैं जो हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर है, वो आपकी चिंता करता है, हमारी चिंता करता है। उसने अपना अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर दिया है। वही अनुग्रह का आत्मा वजह बन जाता है कि हम इस मकसद में पहुंचेंगे और हम इन वचनों को फॉलो करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे और हम उस भेद को प्राप्त करेंगे जिसमें से परमेश्वर हमको कुछ देना चाहता है।
आमेन। निश्चित है परमेश्वर हमको ऐसा अनुग्रह का आत्मा दे रखा है और हमने ये अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। 2 साल के अंत में हम देखेंगे परमेश्वर चाहता है हम उस मकसद, उस मंजिल में उतारे गए होंगे और हम परमेश्वर के काम आने वाले बर्तन बने होंगे। ये निश्चित बात है, निश्चित बात है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा ये समय। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह का आत्मा दिया है, उसका हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, आप जीवन की रोटी हो, जीवन का जल हो, जीवित वचन आप परमेश्वर, तेरा आत्मा इस वचन में जीवन देने के लिए हमारे अंदर मौजूद है। ये वचन हमारे अंदर जीवित हो उठते हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमको फिट और फिक्स कर, हमें व्यवस्थित कर, तेरे ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं अनुग्रह का आत्मा हम में तो रहने के लिए, तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। I love you Holy Spirit, I love you Jesus, I love you Father। धन्यवाद करते हैं पिता, नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।